Praise the Lord. We welcome all of you in the name of Jesus. We give greetings to you all. May the Lord bless you and do the great things. प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। May God do the great things. और परमेश्वर महान कार्य करे। He is our joy. वही हमारा आनंद है। Hallelujah. Hallelujah. He is our strength. वही हमारा बल है। He is our Lord God, our King of Kings. वही हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा है। Hallelujah. Hallelujah. There is none like Jesus. और यीशु मसीह के समान कोई नहीं There है। is none like Jesus. यीशु के समान कोई There नहीं is है। none like Jesus. यीशु के समान कोई नहीं है। He is such a wonderful Savior. वो अद्भुत उद्धार करता है। Amen. Hallelujah. May Hallelujah. God be with you. और परमेश्वर आपके साथ रहे। May God do the great things. और परमेश्वर महान कार्य करे। And as per we are heard the announcement that what we heard about what we are actually government has announced to come to the to open for the religious things for the to come and gather to worship. और जैसे कि हमने सूचना में सुना है और जो है सरकार ने ये सूचना दी है कि जो है धार्मिक स्थल जो है खुल जाए। But till this day we are praying, but God has opened the door for that. और बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोल दिया है। Pray, continue to pray for our nation. और निरंतर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते रहिए। That should be that this pandemic should be completely wiped out. और ये महामारी जो है परिपूर्णता से खत्म होना चाहिए। It's not stop the prayer, but we have to continue our prayer. God should heal our nation completely and bring the changes and do the new things in our life. और हमारी प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के लिए महामारी के लिए हमारी प्रार्थना जो है निरंतर होती रहनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे देश से ये महामारी को जड़ से पूरी रीति से खत्म करे। Hallelujah. Hallelujah. May God do the great आप things. परमेश्वर महान कार्य करे। How many of you here wants to hear the word of God with a joyful heart? कितने लोग अपने जो है आनंद पूर्वक हृदय से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Turn with me to the Gospel of Mark, chapter 11, verse 23. और मेरे साथ मरकुस सुसमाचार की पुस्तक 11वां अध्याय 23वें वचन को हम देखेंगे। Verily I say unto you that whoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. मरकुस He shall whatever he saith, it will be come to pass. मरकुस की पुस्तक 11वां अध्याय 23वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। May God do the great things in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करे। Today we are going to see about experience the power of God in what you say. और आप जो कहते हैं उसमें हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने वाले हैं। We need to experience that in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में हमें अनुभव करना है। Jesus very beautifully explained about there is a power. You will experience the power of God in what you say. और यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत रीति से यहाँ पर जो इस बातों को बताया कि जो आप कहते या बोलते हैं उसमें आप क्या है सामर्थ को अनुभव कर सकते हैं। In verse 23 that we see that, और 23 वचन में हम देखते हैं, it talks about if anyone says to this mountain, go throw it to yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will be happen. और वचन में लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़,
और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। It talks about Jesus telling about that and giving the symbol about the mountain and telling that these things, when you believe, it will be what you say, even though it's like a mountain, it will be pass away. और यहाँ पर जो यीशु मसीह जो है पहाड़ का एक जो है चिन्ह इस प्रकार से बताते उदाहरण देते हैं कि यदि आपके जीवन में कुछ भी पहाड़ के समान समस्या या कुछ भी हो, यदि आप कहेंगे तो उस स्थान से निकल जाएगा। It talks about, we see that Jesus is telling here about the things that what you should not have a doubt, but believe that what those things that you say will be come to pass. और यहाँ पे वचन में यीशु मसीह बताते हैं कि आपके अंदर जो है वो संदेह ना होना चाहिए, लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ भी आपने कहा है वो हो जाएगा। So what you say, Bible, Jesus is telling it will be happen. और बाइबल यहाँ पे बताती है, यीशु मसीह बताते हैं जो कुछ भी आप कहते हैं वो हो जाएगा। So God, he talks about God use the instrument of our mouth. और यहाँ पर इसका मतलब हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारे जो मुंह का जो है इस्तेमाल करते हैं। The practice of our faith comes from, first of all, from our mouth. The Bible tells here. और यहाँ पे बाइबल बताती है कि हमारे विश्वास को जो क्रिया में लाते हैं वो सबसे पहले जो हमारे मुंह से ही आता है। In another part, when we see, there is a power in the tongue. Bible tells. और पवित्र शास्त्र हम देख सकते हैं दूसरे जो वचन में इस तरह से बताती है कि हमारे जीभ में सामर्थ्य है। Sometimes we use that tongue or the mouth to confess the different things. और कई बार हमारे मुंह को हम जो है दूसरे बातों को कबूल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Bible tells sometimes Satan use our what we confess. और कई बार जो है वचन में लिखा है कि शैतान भी है जो हम जो बताते हैं उसे इस्तेमाल करता है। He will encourage to some of the things to confess from our mouth. और वो हमें ऐसा प्रोत्साहित करता है कि कुछ बातों को हम जो अपने मुंह से कबूल करें। But Bible tells here God use our mouth as an instrument to experience the power of God. लेकिन यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे मुंह को इसलिए इस्तेमाल करते ताकि परमेश्वर के सामर्थ को हम अनुभव करें। We should know there is a power to snare. और हमें इस बातों को जानना है कि जो है जो फंदे से जो निकलने के लिए जो है वो सामर्थ है। There is a power in our mouth to cure. और जो हमारे मुंह में वो सामर्थ है कि वो ठीक करे। Power to kill in your mouth. और आपके मुंह में जो सामर्थ है ताकि वो आप किसी को भी मार सकते हैं। That means to destroy through the tongues in the Bible tells. इसका मतलब बाइबल बताती है कि आपके मुंह से आप किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। James chapter, when we see, it talks about, he's telling that you have a power in your tongue. और याकूब की पुस्तक में हम देख सकते हैं वचन में लिखा है कि आपके जीभ में सामर्थ्य है। James also explaining about that we should use our tongue properly. और याकूब भी इस प्रकार से बताता है कि हमारे जीभ को हमें सही रीति से इस्तेमाल करना चाहिए। It talks about it is a very sharp and powerful one. और जो वचन में लिखा है कि वो बहुत ही जो है शार्प है, वो जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। He talks about here. और यहाँ पे बताया गया है When in chapter 3 verse 3 we put bits into the mouths of the horses to make them obey us, we can turn the whole animal. और याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। So there is a power in the tongue that it was mentioned here about. और यहाँ पर इस जो है वो अध्याय में जो मुंह का जो जीभ का जो सामर्थ के बारे में बताया गया है। People use that mouth for the different purpose. और लोग भी जो है दूसरे उद्देश्य के लिए जो अपने मुंह को इस्तेमाल करते For हैं, their own desires. उनके खुद की इच्छा के लिए। Sometimes Satan use their tongue to confess the things in our life. और शैतान जो है उनके मुंह से जो कबूल करने के बातों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है।
Bible tells in one of the verses, God tells, you should not take the name of the no false gods in your mouth. और जो है एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर बताते हैं कि झूठे देवताओं के जो है नामों को अपने मुंह से हम कबूल नहीं करना चाहिए। It is very important. We should not confess. We should be careful what we confess in our और life. ये बहुत ही हमें सावधान रहना है, हम क्या कबूल करते हैं हमें इसे अच्छे से जानना चाहिए। At the same time, we have to give our mouth to what God wants to use in our life. और उसी तरह हमारे मुंह को हमें परमेश्वर के हाथों में देना है कि जो परमेश्वर चाहते हैं वही हम बात करें। There are many kinds of words that we speak. और हमारे मुंह से जो है बहुत सारे शब्दों को हम इस्तेमाल करते या बोलते हैं। So there are many kinds of words we speak, but we should know that what we speak. अब बहुत प्रकार के जो है शब्दों को हम अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं हमें इसे जानना चाहिए। Sometimes people will tell, I open their mouth, they will pour out everything like vomit. और कई बार कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि कुछ लोग जो है जब अपने मुंह को खोलते हैं तो सब कुछ जो है वो लोग जो है उल्टी कर देते हैं। And afterwards they will worry about why I spoke like that. और उसके बाद जो है लोग जो है चिंतित होते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों कहा। So the Bible tells very clearly here और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है why Jesus is telling this. और क्यों यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। He's talking about what shall you say that will come to pass. और यहाँ पे वचन में क्यों ऐसा लिखा गया है कि जो कुछ भी आप कहते हैं वो पूरा होगा। Why? What we say that gives glory to God. और क्यों जो कुछ भी हम कहते हैं वो परमेश्वर को महिमा देता है। What Jesus is telling, not only what you say you will experience the power of God, or you will see the miracles or healing or something. और यहाँ पे यीशु मसीह यही नहीं बताते कि जो आप कहते हैं उसके द्वारा जो आप चमत्कार को अनुभव करेंगे या आप अद्भुत कार्य को देखेंगे। That is the second part. वो दूसरा भाग है। He wants to use your mouth to be confessed, to give glory to God. और परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप आपके मुंह से परमेश्वर के नाम की महिमा करें। That is giving glory to God. It's very important. और परमेश्वर को महिमा देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Many kinds of words we speak, बहुत सारे शब्दों को हम जो है बात करते हैं, but we as a child of God, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के we नाते should know use the word in our life which give the glory to God. हमें इस बातों को जानना चाहिए कि जो भी हम मुंह से जो शब्द को निकालते हैं वो हर एक शब्द परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। It's about what we declare. और इसका मतलब कि हम क्या घोषणा करते हैं। In Romans chapter 3 verse 4, where we see there, और रोमियो की पत्री 3 अध्याय 4 वचन में जब हम देखते हैं, we see here about not at all let God be true, every human being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Chapter 3 verse 4. और Romans. रोमियो की पत्री 3 अध्याय 4 वचन, कदापि नहीं वरन परमेश्वर सच्चा और हरेक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे, तेरे बातों में धर्मी ठहरे, और न्याय करते समय तू जय पाए। Bible very telling like this, you prove when you speak the right thing. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है कि जब आप बात करते हो तो आप धर्मी ठहरना चाहिए, मतलब सही बात बोलना चाहिए। And prevail when you judge. और न्याय करते समय तू जय पाए। What we are proving here in our confessions. और हमारे कबूलता में हम यहाँ पर क्या साबित करते हैं? That's why I told we are giving glory to God. और इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। It's not come to the church and confessing and praying and praising the Lord from our mouth. और ऐसे नहीं कि कलीसिया में आकर हमारे मुंह से जो कबूल करना है। In our house, in our family, wherever we are working in a company or wherever you are, when you are mingle with your families or anyone,
your words to give glory to और God. आपके घर में हो या कलीसिया में हो या आप जॉब जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, या आप किसी से भी मिलते हो या आपके परिवार में, जो कुछ भी शब्द आपके मुंह से निकलता है वो सारे शब्दों में परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए। Here Paul is talking about you should reveal the righteousness. और यहाँ पे पौलुस बताता है कि आपको धर्मी या धार्मिक बातों को प्रकट करना है। So you have to prevail when you judge. और जब आपका न्याय होगा आपको जय पाना है। So you have to speak in the way that what God needs in our life. और आपको जो ऐसा बात करना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते When हैं। you speak like this, जब हम इस प्रकार से बात करते हैं, what the Bible is telling यहाँ पे here, पवित्र शास्त्र क्या बताती है, you are proving God is a true God. तब आप ये साबित करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. You are revealing your God is a true और God. हम प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। That's what the word says, let God be true when you confess in the presence of God. और इसलिए वचन में लिखा है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ कबूल करते हैं तो परमेश्वर सच्चा ठहरे। Your words should prove that God is a true God. आपका शब्द जो है इस बातों को साबित करे कि आपका परमेश्वर सच्चा है। That's what the Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है, So here God expects his people what they confess, what they use the words. और यहाँ पर परमेश्वर इस बातों की अपेक्षा करते हैं कि उनके लोग क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं। The word should be proved that God is true in their और life. उनके शब्दों में यह साबित होना चाहिए कि उनका परमेश्वर सच्चा That's है। why no, Paul is telling here, let God be true, every man is a liar. और इसलिए जो पौलुस यहाँ पर बताता है परंतु परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। He's telling he cannot be truthful in his words, he will always be unfaithful in the words. और यहाँ पे जो पौलुस बताता है हर एक मनुष्य जो है उनके शब्दों में जो है सच्चाई में नहीं रहते, हर एक शब्द में जो है असच्चाई में रहते हैं। So he is telling in this way, by protecting everything from every harm, he may use the words to benefit. Whatever he do the some wrong also, he will protect from his mouth telling lies. और यहाँ पे इसका मतलब वो पौलुस बताता है कि जो अपने फायदे के लिए जो है या किसी भी हानि के लिए या किसी भी हानि से बचने के लिए वो क्या करेगा, वो सब हानि से बचने के लिए अपने मुंह से क्या करेगा, झूठ बोलता है। Means if he done something wrong, he will use the lie from his mouth. He is confessing, he is telling the lies to protect himself. और इसका मतलब यदि कुछ उसने गलत किया है, कोई मनुष्य गलत करता है तो अपने आप को बचाने के लिए अपने मुंह से झूठ बोलता है। So what happened here? तो यहाँ पे क्या होता है, He protecting himself through his confession. उसकी कबूलता के द्वारा वो क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित रखता है। So that's what here telling about every man is a liar because he used his tongue for his benefit to protect his life. और इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य जो है झूठा ठहरे क्योंकि अपने फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो अपने मुंह से झूठ बोलता So you है। should judge and you have to say, think about what you are saying. और इसलिए अपने आप को हमें न्याय करना है और हमें इस बातों को हमें सोचना है या समझना है कि हम क्या बोलते हैं। Our words should give glory to God. हमारा जो शब्द है परमेश्वर के नाम की महिमा देना चाहिए Our words should prove and our God we worship is a true और God. हमारे शब्द इस बात को साबित करना चाहिए कि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो जीवित और सच्चा है। Are we do that in our spiritual life? क्या हम अपने आत्मिक जीवन में ऐसा करते हैं? Why? Because God's will in our life, we should experience and reveal the power of God in what we say from our mouth. और क्यों? ये क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कुछ भी हमारे मुंह से हम जो है कबूल करते हैं, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे मुंह से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Hallelujah. Hallelujah. So the Bible very clearly tells और here, इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है first we need to know
why? Because the God's word is true in our life. और यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर का जो वचन जो है सत्य है। We are carrying the God's word. हमारे परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं Because the world was created through His word क्योंकि only. ये संसार जो है परमेश्वर के शब्द के द्वारा ही, वचन के द्वारा ही बनाया गया His है। word is true in our life. परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में सच्चा है। We are having His word in our life. हम उसके वचन को अपने जीवन में पाते हैं। So when we have that word, we should confess the word in our life what He has given. जब हम उसके वचन को अपने जीवन में रखते हैं या पाते हैं तो उसी के वचन को जो हमने पाया है हमें बोलना है। So that's why Bible tells our word should be truthful before God and to the people. इसलिए वचन में ऐसा लिखा गया है कि हमारे जो शब्द है परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने सच्चा होना चाहिए। So here when we see that that's why we need to confess. Our confessions brings the two types of result in our और life. यहाँ पर इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारी कबूलता जो है दो उत्तर को लाती है। There are two things when we confess. और जब हम कबूल करते हैं तो दो बातें होती है। We see the two result in our confessions. हमारे कबूलता में दो उत्तर को हम पा सकते हैं। One brings the negative results, पहला हम देखेंगे नकारात्मक उत्तर को हम देखेंगे and second we see that positive results. और दूसरा जो है सकारात्मक जो है जो उत्तर को हम देख सकते हैं। Sometimes people will confess always about the negative things. कई कबार हमेशा जो है लोग जो है नकारात्मक बातों को ही कबूल करते हैं। They will be encouraged, sometimes they will be always speak about or seeing the things situation, they will speak about the negative things. और कई कबार कुछ लोग जो है परिस्थिति को देखकर, जो परेशानी को देखकर क्या करते हैं, हमेशा वो जो है नकारात्मक बातों को कबूल करते हैं। So it's very important in our life what we confess. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में इस बातों को जानना है कि हम क्या कबूल करते हैं। So when we know, the Bible talks about when we know people used to have the negative confessions, they will have the negative results. और जब कोई व्यक्ति जो है नकारात्मक बातों को कबूल करता है तो उसे नकारात्मक ही उत्तर मिलता है। Sometimes they expect and they confess that become their no expectation in their life. और कई कबार कुछ लोग जो अपेक्षा करते हैं तो वही अपेक्षा के द्वारा जो है उनकी वो जो सामने जो है वही अपेक्षा करते हैं। Sometimes people, the world will make use that people also to take the benefit from that peoples. और कई कबार कुछ लोग जो है दूसरे लोगों से है फायदा ही चाहते हैं। Sometimes people will think that in their life make people to fear. और कई कबार कुछ लोग ऐसा बना देते हैं कि कुछ लोग जो है हमें देखकर डरना चाहिए। I used to see some astrologers, they will come in the night, I used to hear that. और कुछ जो है वहाँ आप देख सकते हैं जो ज्योतिष लोग जो है वे लोग जो है रात को आते हैं। They will do some magic and they will come in some of my areas. No, in my hometown also I used to hear that. They will come in the night time and they will know when they used to hear the things from them. और जो है मेरे गांव में भी और बहुत सारे स्थान पे मैंने देखा है जो ऐसे लोग जो है वो रात को आते हैं और रात को जो है बहुत सारे बातों को वे लोग जो है वहाँ पे जो है वो लोग सुनते हैं। So morning what they will do? तो वो सुबह क्या करते हैं? They will call their neighbors and they will talk about yesterday that person came. No, he told it truthfully and it's going to be happen in our family. और जो है वे लोग अपने पड़ोसी को बुलाकर इस प्रकार से कहते हैं रात को वो व्यक्ति आया था ना, उसने वो जो भी कहा वो सत्य है और हमारे जीवन में हमारे परिवार में ऐसा ही होगा। So my child is going to be sickness, he told. और उसने ऐसा कहा कि मेरा बेटा जो है वो बीमार हो जाएगा। If you do this, if you take some goat and you sacrifice and you give 100 rupees or 1000 rupees, that will not happen in your life. और उसने कहा है कि यदि आप जो है 100 रुपया या 1000 रुपया आप दोगे और जो बकरी को बलिदान करोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपके जीवन बच्चा बीमार नहीं होगा। So they will give that negative thoughts. They will think about, it will happen, it will happen, it will happen, they will experience that. और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वे लोग जो है नकारात्मक विचार को उनके जीवन में देते हैं और जब वो नकारात्मक विचार को जब लेते हैं तो वे लोग क्या है हमेशा ऐसा सोचते रहेंगे कि अरे ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, यही बातों को क्या करते हैं कबूल करते हैं। That is the negative, the confession that brings the negative result in their life. और जो नकारात्मक कबूलता ही उनके जीवन में नकारात्मक जो है
उत्तर को लाता है। Positive things brings the positive results. और जो सकारात्मक जब हम सोचते हैं तो सकारात्मक ही वहां पर उत्तर को लाता है। Jesus always taught about no, not only the positive things, what Jesus is telling, more than that, when you speak faithfully, it will surely 100% happen. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस बातों को बताते हैं जो सकारात्मक ही नहीं, लेकिन जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वैसा ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. Turn with me to the Matthew chapter 8, verse 16 and 17. Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 8, verse 16 and 17. और मेरे साथ मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 16 और 17 वचन को हम देखेंगे। See, we will see about what Jesus has himself, what he practiced to do the miracles here. यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने चमत्कार करने के लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। Here the Bible talks about in verse 16, when we see here, when evening came, many who were demon possessed, not one people, many who were demon possessed were brought to Jesus. He drove out with the word and healed all the sick. और यहाँ पे हम देख सकते हैं 8वां अध्याय 16 वचन में, Amen. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, थोड़े नहीं बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। Did he fight with this physical? No, I have a strength like that. और क्या यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने शारीरिक जो है वहाँ पर बल से जो है वहाँ पर क्या उन्होंने वहाँ पर झगड़ा या लड़ाई की? He told, no, bring the more angels, then I will come and fight with these और वहाँ पर demons. ऐसा यीशु मसीह ने क्या कहा कि हाँ स्वर्गदूतों को आने दे, फिर हम लोग जो है वहाँ पर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। Here the Bible tells here, यहाँ पर बाइबल बताती है many were, once there are many demon possessed people came there. और बहुत से जो लोग जिनमें दुष्ट आत्मा थे वहाँ पर वे लोग आए थे। Bible tells very clearly, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती he है, drove out the spirit only with the word. और यीशु मसीह ने अपने वचन से सारे दुष्ट आत्मा को वहां से निकाल दिया। Amen. आमेन। He drove out with the word, और वचन के द्वारा उसने निकाल दिया। not only driving out, and he healed all the sick, Bible tells. केवल दुष्ट आत्मा को उनसे निकाला नहीं, लेकिन बाइबल बताती है वो सारे बीमारी लोग चंगे हो गए। That same Jesus is teaching us, we should also confess in this way. वही यीशु मसीह आज हमें इस बातों को सिखाते कि हमें भी उस उन्हीं के समान जो है कबूल करना है। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible very clearly, beautifully tells here, और यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत ही सुंदर रीति से बताती है, the answer is in your mouth only. जो उत्तर है आपके मुंह में ही है। Word of God clearly tells here, the answer is in your mouth. परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से बताते हैं कि जो उत्तर आपके मुंह में You ही don't है। need to go here and there, man. आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है You मनुष्य। don't need to go where is miracle is happening. और जहाँ पे चमत्कार होता है वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। Oh, you don't need to know, see that, oh, where we'll go there, we will go there. और आपको ये भी देखना है कि जहाँ पे मुझे वहाँ पे मैं जाऊंगा तो मुझे चंगाई मिलेगा। Sometimes people will go and spend the more money to here to there where is miracle is happening. और कई कबार जो लोग जो कि जहाँ पे चमत्कार होता है वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे पैसे को खर्चा करते हैं। They will tell, oh sir, they are happening. Oh, that's our family also, and all the families also. We will book a van and we will go to that place. अब वे लोग कहते हैं कि हाँ वो परिवार चाह रहे हैं तो हम अपने परिवार के साथ जाएंगे, और जो बड़े गाड़ी को जो है बुक करके पूरे वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। They will tell, sir, it is very powerful one there, you वे लोग know. कहते हैं कि हाँ सर वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सामर्थ्यशाली है वो। Oh, many people are falling like anything. बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही गिर जाते हैं। Did Jesus done this? क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? Jesus is telling, man, the result is in your mouth only. यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं मनुष्य जो उत्तर है आपके मुंह में ही है। You are having, I am giving the authority to your mind, your mouth, man. और आपके मुंह में मैं जो है अधिकार देता हूँ। We need to understand very clearly. हमें बहुत स्पष्ट रीति से समझना है। Here the Bible tells, यहाँ पे बाइबल बताती the है answer is in your mouth. और जो उत्तर आपके मुंह में है, You confess with your, you confess that what God can able to do that. और आपको इस बातों को कबूल करना है कि क्या परमेश्वर चाहते हैं।
You don't need to wonder about anything. आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। Why? क्यों? We are called to speak the faithful words. परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि विश्वास योग्य वचन को हम बोले। How many of you believe कितने that? लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। You are what? How we can experience the miracles in our life? और हमारे जीवन में हम कैसे चमत्कार को अनुभव कर सकते हैं? How to bring the things will be happen in our life? और कैसे हम उस बातों को जो है अपने जीवन में ला सकते कि ऐसा होना चाहिए? There are 4 things I spoken today. और आज मैंने 4 बातों को बताया। Here, when we know that, basically we have to know and believe God's word is true in our life. और यहाँ पर हमें मूलभूत इस बातों को जानना है, समझना है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। According to the God's word, our confessions also should be there. परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमारी कबूलता होनी चाहिए, Not the negative things. नकारात्मक बातों को नहीं। Our word of God confession comes from our और mouth. परमेश्वर का वचन की कबूलता जो हमारे मुंह से आनी चाहिए। So when we confession coming from our mouth, जब जो हमारे मुंह से कबूलता आती है, there the answer also is there. वहीं पर उत्तर भी होता है। Hallelujah. Hallelujah. When you confess, जब आप कबूल कहते हैं, how we should और confess? हमें कैसे कबूल करना है? We have to confess with our faith. हमारे विश्वास से कबूल करना है। We need to speak and know what God can able to do with our faithful और heart. हमारे विश्वासियों के हृदय से जो परमेश्वर कर सकते हैं उसे हमें कबूल करना है। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पे बाइबल बताती है, Jesus clearly tells, what shall you say, it will come to pass. और यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा है, जो कुछ भी आप कहते हैं वो पूरा होगा। There is no doubt in their hearts. और हृदय में कोई भी संदेह न रखे। So the doubt comes because और संदेह इसलिए आता है the word of God was not remain in your life. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बने नहीं रहता। So you have to remember God's word true always in our और life. हमें हमेशा इस बातों को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा है। The truth of God should reign in our life. परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन पे राज्य करनी चाहिए। Then only we will have a confession of the truth of God in our और life. वहीं पर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के सत्य के कबूलता हम कर सकते हैं। Romans chapter 10 verse 9. और रोमियो के पत्री 10वां अध्याय 9वां वचन, What the Bible tells here. पवित्र शास्त्र यहाँ पर क्या बताती If है? you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised from the dead, you will never be destroyed by any power of evil. You will be saved by Jesus. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे Amen. और अपने मन से ये विश्वास करे कि Amen. परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। तो निश्चय उद्धार पाएगा। Read verse 8. 8वां वचन को पढ़ेंगे। What does it say? परंतु वो क्या कहती है? The word is near you. यह कि वचन तेरे निकट है। You don't need to go here and to search. जो आपको यहाँ वहाँ जो ढूंढने के लिए नहीं जाना है। Man, the word of God is in your hand. जो परमेश्वर का वचन आपके हाथों में है The word of God you are hearing. और परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं Your word of God you are having in your और life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है। It's not far from you. वो आपसे दूर नहीं है, It's near to वो you. आपके निकट है, It's in your mouth. या आपके मुंह में है। Hallelujah. हालेलुया। It's in your mouth वो तेरे मुंह में है and in your heart. और तेरे मन में है। That is the message concerning the faith that we proclaim. यह Amen. वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Declare that the word of God in और your life. परमेश्वर के वचन को आपके मुंह से घोषणा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If we have any disease, यदि आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, you have to know that what is the thing that is going on in your body or your sickness. और आपको इस बातों को जानना है कि आपके जो के शरीर में वो बीमारी निकलेगी नहीं निकलेगी। And you have to
confess, और आपको कबूल करना है, confess the word of God. और परमेश्वर के वचन को कबूल करना है। 3 things. 3 बातों को, Confess the word of God. परमेश्वर के वचन को कबूल करना, It tells about the healing in your life. इसका मतलब आपके शरीर में जो चंगाई को कबूल करता For है। example, by the stripes of Jesus we are healed. उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। So confess the word. By Lord, your word tells, by the stripes you are, Lord, we will be healed from not a certain sickness, every sickness. और ऐसा कबूल कीजिए कि हाँ, यीशु आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तो हमारे जीवन में जो भी बीमारी है, प्रभु एक नहीं बहुत जो बीमारी है, वो उससे हम चंगे पा चुके हैं। So second, दूसरा, use the name of Jesus. यीशु के नाम को इस्तेमाल कीजिए, Use the authority. वो अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। And third, तीसरा, tell the sickness and dry out in the name of Jesus. बीमारी को कहिए और यीशु के नाम से भगाइए। Hallelujah. हालेलुया। Our confession. हमारी कबूलता, We should be very careful in our life. हमारे जीवन में बहुत ही सावधान पूर्वक रहना है। Bible tells very beautifully here. पवित्र शास्त्र बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर बताती है, We have to confess in the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल करना है। Bible Romans, when you see that when you confess only you will be saved. और यहाँ पे रोमियो के पत्री में हमने देखा जो यदि हम अंगीकार करते, कबूल करते तो ही हमारा उद्धार होगा। Unless you are not confessing and declaring the word of God and confessing you are faithful, what you have a faith in Jesus. और जब तक आप यीशु मसीह के वचन को या यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, जब तक आप कबूल नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, You will not see the action, the work of God, or the word of God is near you. और तब तक आप इस बातों को नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर का जो हाथ या परमेश्वर का वचन आपके पास है। This word is working in our और life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता Not है। only today. आज नहीं, The world was begun through the word of God ये only. संसार की जो उत्पत्ति जो है वो जो है परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible tells here, और यहाँ पे बाइबल बताती है, God is Jesus. That's what He's telling. He is to confess from your और mouth. इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं अपने मुंह से कबूल कीजिए। That means इसका मतलब God is waiting for every believer to begin to speak in faith. और यीशु मसीह हर एक विश्वासियों का इंतजार करते हैं कि उनके मुंह से अपन क्या है विश्वास के द्वारा कबूल करें। Sometimes people will tell, yes, Pastor, I have faith. और कई बार लोग इस प्रकार से कहते हैं, हाँ पास्टर जी मेरे पास विश्वास है। And they will tell, yes, Pastor, I fear. But also, Pastor, there is a problem in that. That's why I'm fearing that. आगे लोग इस प्रकार से कहते हैं, हाँ पास्टर मैं 100% विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या करें उसमें थोड़ा सा समस्या है, और ऐसा कहते हैं। So why? क्यों? The Bible very clearly tells here, पवित्र शास्त्र यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, speak in faith means विश्वास में बात करना, इसका मतलब confess your faith will whole believe and hope upon God. और विश्वास में कबूल करना और परमेश्वर में आशा को रखना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't speak what you cannot do. You are not doing that. और जो आप नहीं कर सकते उसे मत बोलिए। It's true, you cannot able to do that. और ये सत्य है कि आप वो नहीं कर सकते, But speak what God can able to do. That. लेकिन जो परमेश्वर कर सकते हैं उसे बोलिए। Yes, it is true. We cannot do that. हाँ ये सत्य है कि हम नहीं कर सकते, We cannot heal our sickness. हमारे बीमारी को हम ठीक नहीं कर We सकते, cannot find the problem, solution for our और problems. हमारी समस्या में हम उपाय को ढूंढ नहीं सकते। But when we confess, लेकिन जब हम कबूल करते हैं, there we will see the hand of God. वहीं पर हम परमेश्वर के हाथों को देख सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So God, you have to know that every believer, God is waiting to confess the faithful words in और from their यहाँ mouth. पे हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर इंतजार करते कि हर एक मुंह से ये क्या है अंगीकार करना या कबूल करना है Yes, Lord, you will do कि this. हाँ प्रभु आप ऐसा करेंगे, You are doing this in my प्रभु life. आप मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हैं।
Confess that. ऐसा कबूल कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible very clearly tells और about पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, our what we speak. There is a power in that. और जो हम कहते हैं उसमें सामर्थ्य है। It's not our power. ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, It's the power in the name of Jesus. और ये यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। When you turn with me to the Revelation chapter, और जब मेरे साथ प्रकाशित वाक्य को हम जब खोलेंगे, Revelation chapter 12 verse 11. और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11 वचन, At the last it was mentioned here. और अंतिम यहाँ पे जो हम देख सकते हैं बताया गया है, They triumphed over him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11 वचन, वे Amen. मेमने के लहू के कारण मेमने का यीशु का लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण अपनी गवाही का कबूल का विश्वास का कबूल की वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इस पर जयवंत हुए। They overcome the world and the Satan and the things of the world in their life. और उनके जीवन में उन्होंने शैतान और संसार के हर एक वस्तुओं पर जयवंत हुए। Every kind of what they faced in their life, उनके जीवन में हर एक प्रकार का जो भी वे सामना करते हैं उस सबसे everything they have overcome, the Bible tells. बाइबल बताती है सबसे उन्होंने जय पाई It है। is a prophetical one, it tells here. और यहाँ पे भविष्यवाणी यहाँ पर दी गई है, At the end there will be a people will be there. और अंत में वहाँ पे जो लोग वहाँ पर रहेंगे, They are the people who are triumphed over by the blood of Jesus. और वे ऐसे लोग जो हैं यीशु के मेमने के लहू के कारण वो जयवंत हुए। And the second, और दूसरा, by the word of their testimony. और अपनी गवाही के वचन के कारण There are victory through the two things. दो बातों से जो है विजय होती है। One, by the blood of Jesus. पहला यीशु मसीह के लहू के द्वारा, That he has done on the cross. जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, That power was stored because he shed the blood on the cross. और वो सामर्थ निश्चय रूप से आते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से जो है अपने लहू को बहाया। That means shed the blood means he released the power to the people. और जो अपने लहू को बहाना, इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने सामर्थ को लोगों पर क्या किया है, दिया है। That blood has a power because it's a holy blood. और वो लहू में जो सामर्थ है क्योंकि वो लहू पवित्र है। It is not the unrighteous one, it is a righteous one. वो धार्मिकता या अधर्मिक का जो लहू नहीं, लेकिन वो धार्मिक या धार्मिकता का लहू है। The blood will wash the sins of the people. जब यीशु का लहू है जो लोगों के पापों को धोता है, It breaks the barriers of the people. और लोगों के हर एक बंधनों को तोड़ता है। It changes the curse into blessing. और यीशु का लहू जो सारे श्रापों को आशीष में बदलता है। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, The people who are chosen by the Lord, believed in the Lord, और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु ने उनको चुना है। in last days there will be a people will be standing in the presence of God. और वचन में लिखा अंतिम दिनों में जो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में लोग खड़े रहेंगे। Who are they? वो लोग कौन है? They are the people who victory over everything. वे ऐसे लोग हैं जो हर एक बातों से विजय प्राप्त किए हैं। How they overcome in their life? और किसमें वे लोगों ने विजय प्राप्त की? By the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Second, दूसरा, by the confession of their mouth of the word of their testimony. और अपनी गवाही के वचन के कारण जो उन्होंने अपने मुंह से कबूल किया। They carry the word of God in their mouth. और परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने मुंह में जो है लेकर गए। And they carry the word of the living God in their life. और उन्होंने जीवित परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में क्या है लेकर गए। They confess the word which has the giving the life to the people. और वे लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखा जो वचन लोगों के जीवन को जीवन देता है। And the word is giving the word, give the victory over everything. और वो वचन जो है हर एक बातों में है विजय को देता है। So what they confess and they got the victory, that's what they are revealing here. And they are the victory people. और जो वे लोगों ने
कबूल किया और जो जय को पाया, उसी जय को वे लोग यहाँ पर बताते कि हम जयवंत हुए लोग हैं। They are the people who overcome, और वही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जयवंत पाया है, who overcome by the word of their testimony. और उनके अपने जो अपने गवाही के वचन के कारण वो जयवंत हुए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We should experience the power of God in our और life. हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करना है। Hallelujah. हालेलुया। One small practice I want to tell here in this place. और इस स्थान पर मैं एक छोटे से कार्य को बताना चाहता हूँ, How we have to use the word of God. कैसे परमेश्वर के वचन को हमें कबूल करना How है, we इस्तेमाल have to करना है, confess. कैसे कबूल करना है। Bible very clearly tells here. पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है। Proverbs chapter 25 verse 11. और नीति वचन 25वां अध्याय 11 वचन, He is telling, Solomon is telling wisely about use the words in a proper time. और जो है सुलेमान बहुत ही बुद्धिमान से इस बातों को कहता है कि जो वचन है सही समय पे हमें इस्तेमाल करना है। Read the verse. Amen. नीति वचन 25वां अध्याय 11 वचन, Amen. जैसे चांदी की टोकरियों में हाँ। सोने के सेब हो, हाँ। वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। Using the word in the proper time, it's very important. और जो है वचन जो है ठीक समय पे इस्तेमाल करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। God has given the word of God. और परमेश्वर ने ही परमेश्वर का वचन दिया है। We are ready. He has given and no command to speak the words of faith in our confessions, to speak the word of God in our और life. परमेश्वर ने वो वचन हमारे जीवन में दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम कबूल करें। When? कब? In the proper time. ठीक समय में। You should not fear for the situations. उस परिस्थिति में हमें डरने की जरूरत नहीं Yes, है। in fleshly we will be weaken of the some of the situations in हाँ, our life. शारीरिक रूप में हम कुछ परिस्थिति में जो है कमजोर हो जाते हैं, But even though in our weakness, लेकिन भले ही हमारे कमजोरी में but we listen very carefully. हमें बहुत ही सावधान पूर्वक जो है सुनना है। In that situation, you have to use in the proper time the word of God. और उस समय में हमें जो है ठीक समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। God has given that opportunity. और परमेश्वर ने वो मौका हमें दिया है। God has given the instrument, the sword in our और life. परमेश्वर ने वो जो है हथियार को हमें दिया है। When we experience the power of God, और कब हम परमेश्वर की सामर्थ को जो है अनुभव कर सकते when we हैं, use the proper word of God and the words what we confess in Jesus in proper time. और जो हम परमेश्वर के वचन को या हम यीशु मसीह में जो वचन को कबूल करते हैं, वो जो है वचन ठीक समय में कबूल करना है। No, sometimes people tell, after Jesus heal me, then only I will believe in Jesus. और कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जब यीशु मसीह मुझे चंगाई देंगे तो ही मैं यीशु पे विश्वास करूंगा। Sometimes people will tell, they know the Jesus very well about in their life. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, But from their heart, they were not ready to confess in every situation. लेकिन उनके जो है हृदय से वे लोग हर एक परिस्थिति में कबूल नहीं करते। Afterwards, we will see. हाँ, उसके बाद हम देखेंगे। Afterwards, we will pray. हाँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। That is the proper time you have to confess. और वही ठीक समय है आपको कबूल करना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you need something, you are using that the time and using the things in your life. और जब आपकी जरूरत होती है उस समय जब आप ठीक समय में जब आप क्या करते हैं, कबूल करते हैं। When you are hungry, in that proper time you will have a food. और जब आप भूखे होते हैं तो उस ठीक समय में आप क्या करते हो, भोजन करते हो। In the same way, you have to use that in every situation. You have to use the word of God in the proper time. उसी तरह जो है परमेश्वर के हर एक वचन को हमें ठीक समय में इस्तेमाल करना The है। correct time that you have to confess in the और presence of सही समय में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल करना है। with a faithful heart. विश्वास योग्य हृदय से You will see the
wonderful things of God. तब आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को वहाँ पे देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Second, दूसरा, we have to accept the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। Sometimes the Bible tells in the same time when we see in verse 12 there, और उसी 25वें अध्याय 12 वचन में जब हम देखते हैं, here talks about words to discipline and to rebuke. और जो वचन जो है अनुशासन में लाने के लिए और डांटने के लिए, We have to use the word of God to discipline ourselves. और परमेश्वर के वचन को हमें इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें अनुशासन में हमें खुद को लाना है। When we confess the word of जब God, हम परमेश्वर के वचन को कबूल we करेंगे, will come to know what we need to correct in our life. तब हम इस बातों को जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या हमें सही रीति में लाना है। When we remember the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, when we confess with a faithful heart, जब हमारे विश्वासियों के हृदय से हम कबूल करेंगे, we will come to know, we will examine ourselves, we will find there is a mistake in our life. तब हम अपने आप को जांचेंगे और हम इस बातों को देखेंगे कि हमारे जीवन में स्थान पर कुछ गलतियां हैं। And we have to also use the words of disciplining others, our family also. और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, परिवार के जो है लोगों के जन में भी हमें उन्हें अनुशासन में लाने के लिए वचन को इस्तेमाल करना है। Sometimes we have to use the word to discipline and rebuke others. और दूसरों को डांटने के लिए और दूसरों को अनुशासन में लाने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। Bible tells very clearly. यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है। Sometimes people will no, they will never correct their children. कई कबार जो है लोग अपने बच्चों को सुधारते नहीं। No, my children they are very smart. मेरे बच्चे जो बहुत ही जो है बुद्धिमान है। Whatever is smart your children is. आपके बच्चे कितने भी बुद्धिमान हो, But before the word of God, you need to confess according to the word of God. You have to grow the child. लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने बच्चों को हमें चलाना है। Hallelujah. Hallelujah. They may be a smart, वो शायद बहुत ही अच्छे स्मार्ट या बुद्धिमान होंगे, but not in the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं। If they are not in the word of God, यदि परमेश्वर के वचन में नहीं है तो they will not. Whatever they are smart, that is not use for them. यदि वो कुछ भी बुद्धिमान हो, कुछ फायदा नहीं होगा। It's very important in our ये life. हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण That's why है। Psalmist, Solomon is telling here, इसलिए सुलेमान यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कहता है, words to discipline and to rebuke our life. वो वचन जो है अपने जीवन को अनुशासन में लाने के लिए और डांटने के लिए है। We hear the word of God. और परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, We have to accept every word of kinds, that every type of word of God which shapes our life. और परमेश्वर के हर एक वचन को हमें क्या है, ग्रहण करना है ताकि वो वचन हमारे जीवन को आकार दे। Bible tells your word of God is a double-edged sword. It is purposed for teaching and rebuking and for the correction. और परमेश्वर का वचन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है दो-धारी तलवार है, जो हमें सुधारता है, हमें उपदेश देता है और हमें जो है अनुशासन में लाता है। Bible tells God, he corrects his children whom he loves. और बाइबल बताती है कि जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं उसे वो सुधारता है। Bible never tells he hurts the children, that's why he is correcting the children, बाइबल ऐसा rebuke नहीं the बताती है children. कि जो है परमेश्वर लोगों से नफरत करते हैं इसलिए उनको जो है ताड़ना देते हैं या उन्हें सुधारते हैं। Bible tells he loves the children, that's why whom he loves he will discipline them. लेकिन बाइबल यहाँ पर बताते हैं कि जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं परमेश्वर उनको ताड़ना देते हैं या उनको सुधारते हैं। So that is the kind of word that we should have in our और life. ये इस प्रकार के वचन को हमारे जीवन में हमें रखना चाहिए। That will only we will practice and और confess. इसी के द्वारा जो हम क्रिया में लाकर जो कबूल करना है, In verse 13 tells about in that same chapter, उसी 25वें अध्याय 13 वचन में लिखा है, when we have the words, the sum of the good words, it will refreshes our soul. और जो है वचन जो है कई कबार हमारे प्राण या आत्मा को जो है ताजा बनाता है। Hallelujah. The Bible tells the word of God, when we confess, it refreshes our soul. और जब परमेश्वर के वचन को जब हम क्या कबूल करते हैं तो वो हमें ताजा बनाता है, It renews our वो soul. हमारे आत्मा को, प्राण को जो है वो नया बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. Bible tells it will wash us. और बाइबल बताती है वो हमें शुद्ध करता है। That's why we need to confess the word of इसलिए God. हमें परमेश्वर के वचन को कबूल करना है। That's in there only we experience the power of God. वहीं पर हम परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कर सकते हैं। In verse 14,
14 वचन में we should not use the word. It is what is for the vainful thing. Vainful words we should not. Useless words we should not use. और हमारे जीवन में जो है जो जिसका जो अर्थ ही नहीं है जी उसका जो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता उसे उस जो वचन को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। Sometimes people know they will, but nothing is that, but they will boast कई about it. कबार जो है लोगों के जो में कुछ भी नहीं होता है फिर भी वो क्या करते हैं घमंड करते हैं। That Bible tells that should not, that will not give the benefit to our life. बाइबल बताती है वो हमारे जीवन में फायदेमंद नहीं होता। The Bible tells we should not have the words of boastfulness. और बाइबल बताती है बहुत स्पष्ट रीति से कि जो घमंड करने वाले बातों का हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। You know about our family. आप मेरे परिवार के बारे में जानते You हैं, know about our surname. हमारे जो सरनेम के बारे में जानते हैं You क्या? know who we are. हम कौन है क्या पता है? We have many buildings. मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग है, We have many बहुत properties. सारे धन संपत्ति है। So we talk, whenever we talk about, they will tell about, boast about what they और have. कई कबार कुछ लोग जो है जब भी बात करते हैं वो अपने बारे में घमंड करके बोलते रहते हैं। Because they have the negative thoughts, someone will not think about they are a different person, are a poor person like that. क्योंकि उनके पास वो नकारात्मक विचार होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या है वो अपने आप को इस बातों को सोचेगा कि हाँ इनके सामने मैं गरीब हूँ। If they are thinking you will become a poor or what, यदि आप वो ऐसा सोचेगा कि आप गरीब है तो क्या आप गरीब हो गए क्या? they will not be like that. ये लोग ऐसे नहीं रहेंगे। It's our thought. ये हमारा It's विचार है, our ये confession. हमारी कबूलता है। That's why इसलिए the Bible tells about we should not use the boastful words. इसीलिए जो है घमंड करने वाली बातों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। And another thing we see here और अगले बातों को हम यहाँ पे देखते हैं in verse 15, 15 वचन में, read that verse. धीरज धरने से धीरज धरने से, न्याय मनाया जाता है amen. और कोमल वचन कोमल वचन, हड्डी को भी तोड़ डालता है। so the Bible very clearly tells here, और पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है like a snow cold drinking, always the trustworthy messenger is the one who sent him. Yeah, verse 15, sorry. The patience rule can be persuaded, a gentle tongue can break a bone. धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। So in our words, we should not use with the cruelty, with harming others. और हमारे वचन को जो है हमारे मुंह से जो है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या दूसरों को जो क्रूरता से हमें बोलना नहीं है, To covering others, और दूसरों को जो छुपाने के to लिए, attracting others. दूसरों को आकर्षित करने के लिए। Who you are, reveal that and confess the word of God. आप कौन है उसी बातों को प्रकट कीजिए और प्रभु के वचन को कबूल कीजिए। That will build your life and others' life. तब वो आपका जीवन भी और दूसरे का जीवन को भी आप बनाएंगे। So use the word in a proper time. और परमेश्वर के वचन को ठीक समय पे इस्तेमाल कीजिए। Speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलिए, Confess the word of God. परमेश्वर के वचन को कबूल कीजिए, Believe in your heart. अपने हृदय में विश्वास कीजिए, What you say, जो आप कहते हैं it will come to pass. वो ही होगा। Experience in the power of God in what you say. जो आप कहते हैं उसमें परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कीजिए। For that only you are chosen. इसी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। The word of God is given in our tongue. और परमेश्वर ने उसके वचन को हमारे जबान में दिया है। That's what the Bible tells. इससे बाइबल बताती है You, when you confess the word of जब आप God, परमेश्वर के वचन को कबूल करते you हैं will see the Spirit of God will work in your तब life. आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। When the people, disciple, they prayed in the presence of जब God, यीशु के चेलों ने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया and for receiving the power of the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के लिए, the Spirit of God, where it touched, और जो पवित्र आत्मा ने कहाँ पे स्पर्श the किया fire came and touched where? और जो आग आकर कहाँ पे स्पर्श हुई Very important part of the body. और शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में। The fire never came and touched in the hands or part, rest of the body parts. जो आग
जो है हाथों में या बाकी के शरीर के भाग में स्पर्श नहीं हुआ। The fire came and touched in the tongue of the people. और जो आगे जो वहाँ के लोगों के जीभ को स्पर्श हुई, Because क्योंकि they had the word of Jesus in their क्योंकि life. उनके जीवन में परमेश्वर का वचन था। So the word of God, when they receive the Spirit of God as a fire in their tongue, when they speak, what they believe the word of God, that they saw the power of God was revealing in that और place. जब उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को पाया और जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसके अंदर वे लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ को देखा। Before they were having the word of Jesus, learn about the word of Jesus in their life. पहले उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को, जो यीशु के वचन को उन्होंने सीखा और अपने जीवन में रखा था। Now they are going to practice that. लेकिन अब वो अपने जीवन में वचन को क्या करने वाले, क्रिया में लाने वाले हैं। How they have to practice? That's why Jesus told you have to wait and pray. The Spirit of God is coming in your और वो life. कैसे क्रिया में आएगा, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा आपको इंतजार करना है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा तब आप उसे क्रिया में ला सकते हैं। Why that experience speaking in the tongues? और क्यों अन्य भाषा में बात करने का जो अनुभव उन्होंने पाया, That is the physical evidence of the Holy Spirit proving they are having the word of God in their life. और ये जो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वो एक शारीरिक बातों को जो एक सबूत यहाँ पर बताया गया है कि हम जो अन्य भाषा में बात करते हैं, What we say, the word of God, it will be fulfilled. और जो कुछ भी परमेश्वर का वचन अपने मुंह से हम कहते हैं वो परिपूर्ण होता है। For that only the Spirit of God was given as a proof, speaking in tongues. और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा जो एक सबूत के तौर पे हमें दिया है वो है अन्य भाषा। What they have, the word of God, it has a life. और जो उनके पास परमेश्वर का वचन है उसमें जीवन They है। have the Spirit of उनके God पास परमेश्वर की आत्मा है to reveal the Spirit of और God. परमेश्वर की आत्मा को वहां पे प्रकट करने के लिए God touched the tongues to reveal through the physically. और परमेश्वर ने उनके जबान को स्पर्श किया ताकि शारीरिक रूप में वे लोग प्रकट करें, Hallelujah. Hallelujah. Because they believe in the word of the क्योंकि Lord. उन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। They are ready to obey the word of the वे Lord. लोग परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए तैयार हो And गए they are ready to practice the word of God by confessing in the presence of और God. परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को जो है उन्होंने जो है अपने जीवन में जो कबूल करने के द्वारा वहां पर उन्हें कबूल किया था। That's what the Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है Jesus told that though the power will come from above, then you will be my witness to the ends of the और world. इसलिए वचन में इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो है परमेश्वर का जो आत्मा का सामर्थ जो है वो ऊपर से आएगा, तब आप पूरे संसार के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. There is a power, Bible tells. बाइबल बताती है सामर्थ है There is a power will come, और सामर्थ आएगी touch your और tongue, आपके जबान को स्पर्श करेगी, and you will be my witness. तब आप मेरे गवाह बनेंगे। So you will by me witness means और आप मेरे गवाह बनोगे, इसका मतलब that means from their mouth what they do that, और उनके मुंह से वे लोग क्या करेंगे, that will be performed, that will be happen in their और life. वे लोग जब अपने मुंह से कबूल करेंगे तो उनके जीवन में होगा। They reveal the power of God. और वे लोग वहां पर परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करते थे। That's why Bible tells 3,000 people they accepted the Jesus as a और savior. इसलिए वचन में लिखा है कि वो 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। Peter started to speak the word of God, और वहां पर पतरस परमेश्वर के वचन को बताना शुरुआत किया confess the faithful words. और विश्वास योग्य वचन को कबूल करता गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's why when you see in the lame person who is sitting before the temple, he went and Peter, John went and performed the miracles. We don't have no gold or silver. We have the name of Jesus. Get up and walk, they told. और जो हम देख सकते हैं कि जो मंदिर के बाहर जो व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, Amen. वहां पर जो पतरस और योना पर जाके कहे ये जो कि मैं हमारे पास सोना चांदी नहीं, हमारे पास यीशु का नाम है, उन्होंने कबूल किया और वो व्यक्ति वहां पर चलने फिरने लगा। Hallelujah. Hallelujah. He raised up and walked. और वो वहां से वो उठ खड़ा हो गया। Why?
क्यों? There is a power in what we say. जो हम कहते हैं उसमें सामर्थ्य है। Do you want to experience? क्या आप ऐसा अनुभव करना In these चाहते हैं? last इस days, अंतिम दिनों में we need to experience there is a power in what we say in the name of Jesus. और हमें इस दिनों में इस बातों को अनुभव करना है कि जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें सामर्थ्य है यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. That's why Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है Revelation chapter प्रकाशित वाक्य में, one who they are the people who overcome by the word of their testimony. और अपनी गवाही के कारण, वचन के कारण वे लोग जो है जयवंत हुए। You want to be overcomers. क्या आप जयवंत होना चाहते हैं? Experience the power of God in what you say. जो आप कहते हैं उसमें परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव कीजिए। Believe in Jesus' name. यीशु के नाम पे विश्वास कीजिए। In this time, in this second, He is ready to do the miracles. और in your life. आज इस क्षण में, इस समय में वो आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Today confess. आज कबूल कीजिए। Yes, I will. No, I am receiving the healing of Jesus in the name of Jesus. हाँ, यीशु के नाम में मैं जो है मेरे शरीर में चंगाई को मैं पाता हूँ। If you confess, यदि आप कबूल करते in हैं, that second you will see the changes in your body. उसी क्षण में आप आपके शरीर में बदलाव को देख पाएंगे। Today you are in the presence of God. आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Today surrender. आज कबूल कीजिए। Yes, Lord. हाँ प्रभु, From today, आज से I want to experience the power of God in my confessions, O Master. मेरे कबूलता में परमेश्वर आपके सामर्थ को मैं देखना चाहता हूँ। I surrender my life. मेरे जीवन को मैं समर्पित I करता हूँ। surrender my part of my body, मेरे शरीर के हर एक भागों को मैं समर्पित करता हूँ। especially my mouth and tongue, O Lord. मैं स्पेशली जो मेरे विशेष रीति से मेरे मुंह को, मेरे जबान को प्रभु, When you surrender that, जब आप ऐसे समर्पित you करते will हैं see the glory of God in your तब life. आपके जीवन में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। How many of you want to surrender? कितने लोग समर्पित होना I want चाहते you हैं? to close your मैं eyes. चाहता हूँ आप अपने आंखों को बंद कीजिए। I'm going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। I want you to raise your hand मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को ऊंचा उठाइए and you are going to experience the power of और God तब आप परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव कर पाएंगे and surrender. और समर्पित हो जाइए। I surrender my life. प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, I welcome you in my life. मेरे Lord जीवन Jesus. में मैं आपको स्वागत करता I हूँ। surrender my mouth. मेरे मुंह को आपके हाथों में समर्पित I करता हूँ। surrender my body. मेरे शरीर को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। Oh, I surrender my what I confess, oh Jesus. जो मैं कबूल करता हूँ मैं समर्पित करता हूँ। Lord, I'm going to confess the word of God more and more. प्रभु आपके वचन को मैं ज्यादा से ज्यादा कबूल करना चाहता हूँ। For that I surrender my tongue, oh Jesus. उसके लिए मेरे जीव को मैं समर्पित करता Holy हूँ। Spirit, you hold my tongue. पवित्र आत्मा आप मेरे जीव को नियंत्रण I कीजिए। मैं surrender. समर्पित करता हूँ। Lord, I surrender those who are surrendering to प्रभु you. जो आज आप में समर्पित होते हैं उनको मैं समर्पित करता Hold हूँ। their tongue, oh Jesus. उनके जबान को आप प्रभु स्पर्श कीजिए। Oh, give your strength in their life. उनके जीवन में आप बल दीजिए। Confess the word of God. परमेश्वर के वचन को कबूल कीजिए Confess what is possible of God in their और life. परमेश्वर के संभवता को अपने जीवन में कबूल कीजिए And do the great things, oh और God. परमेश्वर आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य They कीजिए। are surrendered to you, Lord. आप में वे लोग समर्पित होते हैं From प्रभु। today onwards, आज से they are परमेश्वर going to confess what it is. They are having faith in you, जो Master. आप में विश्वास करते हैं उस विश्वास में वे लोग आज से कबूल करने वाले हैं And proving God is true, oh और Lord. इस बातों को प्रभु साबित करने वाले कि आप सच्चा परमेश्वर है And give glory to your name, oh और आपके Jesus. नाम की महिमा देने वाले हैं And प्रभु। experience the power what they are going to say in the coming days, oh और आने God. वाले दिनों में जो वो अपने मुंह से कहने वाले उसमें वो आपके सामर्थ को देखेंगे। Touch them in the name of Jesus. उन्हें आज स्पर्श कीजिए यीशु के Touch, नाम Lord, in से। this स्पर्श day. कीजिए यीशु के नाम Touch, से। Lord, in this इस day. दिनों में आप स्पर्श कीजिए प्रभु। Deliver from all the Lord bondages. सारे बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए। Let give glory to your name, O Jesus. आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। Today you have promised. आज आपने अभिवचन दिया You are है going to experience what you are going to say. जो हम कहने वाले उसका अनुभव हम करने वाले हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। In Jesus' name. यीशु के नाम से। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. धन्यवाद Shall यीशु। we
all tell thank you, Lord. इसका क्या हम सब लोग कहेंगे? धन्यवाद यीशु। Confess thank you, कबूल Jesus. कीजिए, धन्यवाद यीशु। Miracles happen in Jesus' यीशु name. के नाम में चमत्कार हुआ है। Oh, miracles happen in Jesus' name. चमत्कार हुआ यीशु के नाम से। Healing happen in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगाई हुई है। Miracle happen in Jesus' name. चमत्कार हुआ यीशु के नाम से। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं Let प्रभु, your name be आपके glorified. नाम की महिमा हो। In Jesus' name. यीशु के नाम I से surrender everyone. सभी को मैं समर्पित करता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Praise the Lord. आइए हम सब लोग अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर हम ऊंचा उठाएंगे, जो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। हम सब लोग कबूल करेंगे, अपने मुंह से आज हम कबूल करेंगे, क्योंकि जैसा हम कबूल करते हैं आज हमने देखा, उसमें हम सामत को अनुभव कर पाएंगे। आइए हम सब लोग कबूल करेंगे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में वो उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारा यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे बीच में सदा सर्वदा का आगमन तक हमारे जीवन में, ओ हमारे जुबान में, वो आपका सामर्थ्य का कार्य को हम अनुभव करने वाला एक संतान बने। वो प्रभु आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद May the करे, peace of God be with you. परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे। आमेन।